Hello everyone. Welcome to the session of coding and decoding. Now here we will discuss the topic of coding and decoding, which is important from your SNAP examination point of view. So what kind of questions you might be asked in the paper? Let's first of all discuss about them a little bit. What happens in the questions of coding and decoding is that you will be given a word, some word will be given to you, right? And its code will be given to you. There would be a word and its code. You have to identify the pattern between the letters of the word and the letters of the code. What is the relation between the letters of the word given and the letters of the code given to you? You have to find that relation. And once you have identified that relation, you will be given one more word and you have to make the code of that word on the same lines in which the word and the code given in the example is there, right? So you have to follow the same pattern which is given right here in the word and the code to write down the code for the new word which will be there in the question, right? So important first of all is that you should be uh, able to get the pattern between the letters of the given word and the letters of the code. And secondly, when you rewrite the code for the given word, that is the point where people generally make mistakes. Generally, students are able to crack this part. They are able to crack the word and its corresponding code, but where they make the mistakes when they're rewriting the word and when they're rewriting the code for the given word, right? So now you have mainly two types of questions here. One are the one category is the one which is based on the alphabet, so that is called the alphabetic coding, and second is the numeric coding. Now whether it is alphabetic coding or it is the numeric coding, alphabetic coding means which is based on the alphabets, right, in which the alphabets of the or letters of the word are coded, and in the second part, numeric, where the numbers are given as a code for the given words. So alphabetic and numeric, these two types of codings will be there. In alphabetic coding, obviously letters will be used, and the numeric coding, the numbers will be used to make the codings. Now, whether it is the alphabetic coding or the numeric coding, the first important thing is that you should be aware of the concept of EJOT. Means you should be aware of the position of the letters in the English alphabetical series, right? Means what is the position of letter R, what is the position of letter V, what is the position of letter K. You should be aware of their positions. If you remember the positions, it's very good. Otherwise, in order to remember the positions of the letters in the alphabetical series, you must remember these five words: EJOTY, EJOT. E is at the 5th position, J is at the 10th position, O is at the 15th position, T is at the 20th, and Y is at the 25th position. Now you take any letter, that letter would be maximum 2 positions ahead of these 5 letters or maximum 2 positions before any of these 5 letters. For example, this R. Now R, S, T. Now T is 20th, R is 2 letters before T, right? So R would be 18th. R, S, T. T is 20th, so R will be 18th. T, U, V, right? T, U, V. So V is 2 positions ahead of T, so V will be 22, right? Similarly, J, K, right? K, J, K, J is 10th, so K would be 1 position ahead of J, that is 12th, 11th, right? So in this way, you can find the position of each and every letter if you know the positions of these 5 letters: E, J, O, T, Y, right? Now, first, if I discuss about the alphabetic coding, what happens here? Generally, you will be given a word. For example, if I take a word, say nature, and if I write down the code for nature like this, very easy.
right? Nature code is OBUVSF. So what you have to do is you have to find the pattern between the letters of the word and the letters of the code, right? So N O A B, you can easily identify what is going on here. इनमें क्या relation आ रहा है? N plus 1 is O, right? N is 14th, O is 15th. A plus 1 is B. Next letter of A is B. Next letter of U is T. Next letter of T is U. So T is 20th, U is 21, and so on. U, V, R, S, E, F. So here, while writing the code for nature, which is O, B, U, V, S, F, what we have done is, I have taken the letters which are just ahead of the given letters in the word nature, right? So in this case, you can easily identify the pattern that, okay, in that coding part, the letters are just one step ahead of the letters of the given word, which is nature. So एक step हमने उनको आगे कर दिया, right? It could be like this also. Let's say again, let's take the same word nature, and let's say if I write down the code here, like say P, C, V, W, T, and G, let's say. Again, you can see that now this N is at 14th position and O is 15th, so P is 16th, right? A is first, C is third, T is 20, V is 22, U is 21, W is 23, R is 18, T is 20, E is 5, G is 7. So you can see that here for every letter +2 is done. For every letter, the +2 is done, means one letter is skipped in between. So 21 plus 2, 23, 18 plus 2, 25 plus 2, 7. So every letter is given the code which is 2 positions ahead of it, right? So it is PCVWTG. अब ये कुछ भी हो सकता है. I'm just taking the examples. मैंने +1 किया, +2 किया. It could be anything. But if you know the position of the letters, this pattern identification is not that much difficult. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है. If you simply write down the position of the letters in the word as well as in the code, you will easily get the pattern, क्योंकि क्या किया हुआ है, कैसे, कितना स्टेप आगे गए हैं, कितना स्टेप पीछे गए हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा +2 या +3 किया होगा. It might be in the reverse order also. It might be the previous letters also. One more thing, अगर मैं इसी को लिखता हूँ फिर से, let's say मेरा वर्ड वही है, let's say nature, और अब मैं अगर कोड लिखता हूँ इसका GTWVC and P. Now ऐसा नहीं है कि I have changed something, नहीं. The same pattern will be followed here. The only thing important is that now the code has been written in the reverse order, right? So N का कोड अभी भी वही है, +2 करके P. N plus 2 is P. A plus 2 is C, right? T plus 2 is V. U plus 2 is W, and so on. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोड उसी पैटर्न पे बनाया, बट द कोड हैज बीन रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर. अब ये आपको एग्जामिनर नहीं बताएगा कि वेदर द कोड इज रिटन इन द डायरेक्ट ऑर्डर और इन द रिवर्स ऑर्डर. ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है. एंड द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इज दैट यू लुक फॉर अ लेटर विच इज क्लोज टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. मतलब अगर पहला मैंने ये वाला पार्ट देखता हूँ, यहाँ पे एन है मेरे पास. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू फाइंड द लेटर विच इज क्लोज टू एन इन द गिवन वर्ड, इन गिवन कोड. अगर एन के आसपास का लेटर मैं कोड में देखता हूं तो मुझे पी दिख रहा है, राइट? तो यहां से मुझे एक हिंट मिलता है दैट ओके, माइट बी द कोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इन द डायरेक्ट ऑर्डर. मतलब फर्स्ट लेटर का कोड, फर्स्ट वर्ड का कोड और फर्स्ट लेटर ही बन रहा है, सेकंड का सेकंड बन रहा है, थर्ड का थर्ड बन रहा है. और अगर यही चीज यहाँ पे करता हूं तो एन के आसपास का लेटर मुझे पी दिख रहा है, विच इज इन द एंड ऑफ द कोड. सो यहाँ से हिंट मिलता है हमें कि हो सकता है कि जो कोड है वो रिवर्स ऑर्डर में दे रखा हो, राइट? सो दीज आर द हिंट्स व्हिच वी कैन यूज टू गेट द पैटर्न कि वेदर द कोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट और इट इज फ्रॉम द रिवर्स. अब इसमें ये भी हो सकता है, लेट्स से यही वर्ड हम लेते हैं नेचर, और इसको मैंने कोड कर दिया.
like this, PYVSTC। अगर अब आप देखते हो तो ये 14th है, ठीक है, ये 16th है, ये फर्स्ट है, दिस इज 25, दिस इज 20, दिस इज अगेन 22, दिस इज 21, दिस इज 19, राइट, दिस इज 18th, दिस इज 20, दिस इज 5, दिस इज 3। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, यहाँ पे हो रहा है -2। एक्चुअली दिस इज साइक्लिक, मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड के बाद देखूंगा तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। सो इफ यू आस्क मी विच लेटर वुड बी द वन बिफोर ए, तो कोडिंग में हम बोलेंगे दैट लेटर वुड बी जेड। विच लेटर इज 2 letters बिफोर ए, दैट वुड बी वाई, राइट। सो अगर हमें ए के पीछे जाना है, ए के पीछे लेटर देखना है, तो पिछला लेटर हम कंसिडर करेंगे जेड को, और उसके पिछला लेटर हमें चेक करना है, दैट वुड बी वाई। सो दिस इज अ साइक्लिक इन नेचर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास 20 + 2 आ रहा है, 22, सो +2 यहाँ हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ फिर से +2 हो रहा है, यहाँ पे फिर से -2। सो इट इज गोइंग ऑल्टरनेटिवली +2 -2 +2 -2 एंड सो ऑन। सो इट कुड बी इन दिस वे आल्सो। बट ध्यान रखना, जिस तरह का भी आपको एग्जाम्पल में पैटर्न दिया है, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सेम पैटर्न फॉर द गिवन वर्ड आल्सो। और जब आप वर्ड के लिए कोड लिख रहे हो, दैट इज अ पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ पीपल मेक द मिस्टेक्स, right? So I was saying in the start that whether it is the alphabetic coding or it is the numeric coding, the position of the letters is very important, क्योंकि जो positions हैं, उन positions के ऊपर ही questions बहुत बार बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं न्यूमेरिक की, नंबर्स की, तो नंबर्स में देखो एग्जामिनर कैसे भी खेल सकता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू नंबर्स इट्स द चॉइस ऑफ एग्जामिनर दैट व्हाट ही वांट टू डू। सो इन द केस ऑफ नंबर्स देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज whenever the numeric coding is there। फॉर एग्जाम्पल अगर नेचर की बात करूं, अगर मैं इसमें कोड करता हूं इसको मैथ से, $79, राइट। सो इफ आई से दैट नेचर इज कोडेड एज 79, तो क्या क्या बना? आप सिंपली अगर इनके पोजीशंस देखोगे, पोजीशन यहाँ पे हमने लिख दी 14, 1, 20, 21, 18 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमने 79 कर दिया। If you add up all the positions, 14 + 1 is 15 + 20, 35 + 21, 56 + 18, 74 + 5, 79। That means मैंने क्या किया, जितनी भी इनकी पोजीशंस थी सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो लेटर्स की पोजीशंस ऐड भी हो सकती हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अच्छा, अगर मैं इसमें कोड लिख दूं से, ये तो नेचर इज कोडेड एज दिस। अब इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, जो पोजीशंस हैं उनका डिजिटल रूट निकाला है, ठीक है, उनको उनकी डिजिट्स को ऐड किया, उनका डिजिट सम निकाला, डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। जैसे n इज एट द 14th पोजीशन, सो 1 + 4 is 5। ए ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है तो 1 आ गया। टी का 20, 2 + 0 2, यू 21 है, 2 + 1 3, 18, 1 + 8 9 एंड ई का 5। सो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था कि नेचर को हमने 97 कोड कर दें, इंस्टेड ऑफ दिस 79 से मैं 97 कोड कर दूं। तो क्या किया, डिजिट्स को ऐड किया और उनको रिवर्स कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है दैट यू मल्टीप्लाई ऑल द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स, इंस्टेड ऑफ एडिंग देम यू माइट बी मल्टीप्लाइंग ऑल द पोजीशंस, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। या फिर आप जो भी सम आ रहा है यहाँ पे 79 जैसे डिजिट्स का जो सम आ रहा है, उसको आप नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल कि इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास। सो व्हेन इट कम्स टू नंबर देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और क्या हो सकता था, से नेचर वर्ड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कोड कर दिया, ये भी हो सकता है। अब यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स के जो लेटर्स की जो पोजीशंस हैं उनको स्क्वायर कर रहे हैं। 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, u was 21, 21 का स्क्वायर 441, r was 18, its square is 324 एंड सो ऑन। सो पोजीशंस को हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच एग्जामिनर कैन क्रिएट द क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू द न्यूमेरिक कोडिंग। लेकिन अल्फाबेटिक कोडिंग दैट इज relatively easy,
ठीक है। अब अल्फाबेटिक में भी मैं दो तरह की कोडिंग कह सकता हूँ। वन इज द पैटर्न बेस्ड कोडिंग, जो हमने अभी जिसके बारे में डिस्कस किया, all these examples they were of the pattern based coding. Second could be random coding. Random हम बाद में डिस्कस करेंगे by taking the examples. Random coding means when the words are coded randomly, मतलब पहले का कोड पहला नहीं होगा, दूसरे वर्ड का कोड दूसरा वर्ड नहीं होगा, and so that would be the random coding. एक और इसमें एक कैटेगरी आती है, अगर अल्फाबेटिक कोडिंग की हम बात करें, if I talk about the alphabetic coding, एक और इसमें कैटेगरी आती है which looks like random coding but that actually is not the random. For example, if I take the example of, say, the word is say computer. ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर को कोड करता हूं, like this, XLNKFGVI. Now if you write down the positions here, it is 3, it is 15, it is 13, it is 16, right? It is 21, it is 20, it is 5, it is 18, और यहाँ पे क्या है, ये 24 है, और ये हमारे पास 12th है, ये हमारे पास 14th है, दिस इज 11, 6, 7, 22 एंड 9, राइट? अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से इनमें रिलेशन ढूंढेंगे, यू विल नॉट फाइंड द डायरेक्ट रिलेशन हियर, right? But relation is there. It looks like a random coding, but it's not a random. If you look at the positions, basically C is the third letter from the start. If you write down all the alphabets like A, B, C, D, so on, till say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 21, 22, 23, 24, 25, 26, right? But if you give the numbering in the reverse order like this, right? In that case, you will find that F would be 21st letter, right? This will be 22nd, 23rd, 24, 25, and 26. So basically C is third from the start. It is given the same letter code, which is third from the last. C is third from start. So X is third letter from the last. O is 15th from the start. So O would be 15th letter in the from the start. L will be 15th letter from the end. Right? So how to identify this kind of coding? First of all, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा, डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन रहा होगा. एंड एक और चीज है, यहाँ पे यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर. आपको रिवर्स से इनको याद करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि हर एक लेटर की पोजीशन, जैसे C इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द स्टार्ट, X इज 24th लेटर फ्रॉम द स्टार्ट. सो अगर आप 3 और 24 को ऐड करोगे ना, you will get the sum as 27. O is 15th from the start, L is 12th from the start. So 15 plus 12 बन गया 27. ठीक है. M is 13th from the start, N is 14th from the start. So 13 plus 14 बन गया 27. Same goes with the other letters also. So F की position would be 21st from the end. ठीक है ना. स्टार्टिंग से 21st कौन सा है? स्टार्टिंग में 21st है U. तो अगर रिवर्स नंबरिंग करेंगे तो 21 नंबर आएगा F का. ठीक है. बट हमें रिवर्स में याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि U की पोजीशन स्टार्टिंग से 21 है, F की पोजीशन स्टार्टिंग से 6 है, 21 प्लस 6 मेरा 27 बन रहा है. ऐसे T की पोजीशन स्टार्टिंग से 20 है, G की पोजीशन स्टार्टिंग से 7 है, सो 20 प्लस 7 27 बन रहा है, एंड सो ऑन. सो यहाँ पे हर एक लेटर जो वर्ड में लेटर दे रखे हैं और जो कोड में लेटर दे रखे हैं, उनकी अगर पोजीशंस ऐड करोगे, सो उनका सम हमेशा 27 बनेगा. इसका मतलब लेटर्स को इस तरह से कोड किया गया है कि जो उनकी पोजीशन स्टार्ट से है और जो उनको वही लेटर कोड दिया गया है जो जिस पोजीशन पे कोई दूसरा लेटर रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है. जैसे सी अगर थर्ड पोजीशन पे है स्टार्टिंग से, तो पीछे से थर्ड कौन सा है? एक्स. तो सी को हमने एक्स कोड दे दिया. ओ अगर 15 स्टार्ट से है तो एल 15 होगा पीछे से. ठीक है. जेड को 1, वाई को 2 करके चलेंगे, एल वुड बी 15th लेटर फ्रॉम द एंड, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग इट इज 12th. सो अगर आप ऐड करोगे पोजीशंस को, तो पोजीशन वुड बी एडेड एंड द सम वुड बी 27. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस.
So here's the first one. Here it is given that the word given is Madras. It is coded as NBESBT. So you can easily identify the pattern here, right? It is 13th letter, it is 14th. So M plus 1 is N, A plus 1 is B, D plus 1 is E, R plus 1 is S, A plus B is 1 is B, S T. So basically हर एक लेटर को उसका अगला लेटर हमने कोड दे दिया, ठीक है? M का अगला लेटर N था, A का अगला लेटर B था, D का अगला लेटर E था, एंड सो ऑन. अगर सेम पैटर्न पे जाएंगे तो B का अगला लेटर C आ जाएगा, O का अगला लेटर P आ जाएगा, M का N आ जाएगा, B, C, A, B और Y, Z. So CPN CBZ means second option will be the right answer. Very easy question. Next, अब यहाँ पे हमें वर्ड दिया है ट्रिपल, and what is the code? Code is SQHOOKD. T is 20th, S is 19th, R is 18th, Q is 17th, I is 9th letter, H is 8th, P is 16th, O is 15th, and so on. So you will find that here the letters are given the code which are the previous letters of the letters of the word. ठीक है? T का previous letter is S, R का previous letter is Q, I previous letter is H, and so on. So letters को उनके previous letter के साथ कोड किया गया है. Again, not difficult. So the same pattern, D से पहले आता है C, I से पहले आता है H, ठीक है? S से पहले आएगा R, P से पहले आएगा O, O से पहले आएगा N, S से पहले आएगा R, and E से पहले D. So CHRONRD. So first option will be the right answer. Here the word given is together. And the code is RQEGRJCT. So R is T is 20th, R is 18, O is 15, Q is 17, G is 7, this is 5, this is 5, this is 7, this is 20, this is 18, this is 8, this is 10, right? This is 5, this is third, this is 18, this is 20. So if you look at the pattern here, 20 minus 2 is 18. So this is minus 2, this is plus 2, again minus 2, again plus 2, minus 2, plus 2, again minus 2 and plus 2. So basically this is going like minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 alternatively. ठीक है? तो अगर उसी पैटर्न पे चलेंगे तो पैरोल का कोड क्या आएगा? सो देखो P is 16th, ठीक है? P is 16th. तो अब P से दो पहले 14th कौन आएगा? N. N is 14th. A is first. A से दो पहले जाना है हमें, Z और Y. ठीक है? Y आ जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक है. So this is plus 2. Sorry, this is minus 2. First one is minus 2. Next one is plus 2. अब ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे पहले लेटर का कोड हमने -2 किया था, तो यहाँ से भी हम -2 से ही स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रहे. एंड वन मोर थिंग, ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ लेटर्स सेम हो. यहाँ पे टुगेदर में आपके पास यू हैव 8 लेटर्स, लेकिन पैरोल में सिर्फ 6 लेटर्स हैं. ठीक है? तो लेटर्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है ऐसे केसेस के अंदर. बट द ओनली थिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड इज दैट इफ द फर्स्ट लेटर इज बीइंग डन -2, तो आप -2 से ही स्टार्ट करोगे उसको. -2 then +2, अगला +2 आना था, नेक्स्ट वुड बी +2. सो +2 मीन C आ जाएगा, देन -2, R इज 18th, -2 16th, सो 16th हमारे पास P है. ठीक है? एंड अगेन +2, so O इज 15, +2 इज 17, 17 पे क्या है? Q. अगेन -2 जाएंगे तो J आएगा, J इज 10th, L इज 12th, एंड +2 मतलब E is 5, +2 7 means G. So NCP QJG will be the answer. So NCP
QJG. So first option will be the right answer in this case. So this is a different type of coding. In fact, easy also. So champion is coded as HC MAIPNO. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पेयर को हमने रिवर्स करके लिख दिया, CH को HC, सेकंड पेयर को रिवर्स करके लिख दिया, थर्ड पेयर को रिवर्स करके लिख दिया, एंड फोर्थ पेयर को भी रिवर्स कर दिया. सो बेसिकली लेटर्स को पेयर में हमने रिवर्स कर दिया और हमारे पास कोड बन गया. सो बेस्ड ऑन द सेम, NE कैन बी रिटन एज EN, GA कैन बी रिटन एज EG, TI can be written as IT, VE can be written as EV. So ENAGITEV means option 1 is the right answer. Next, it says fragrance is coded like this. Fragrance. If I write down the positions here, so these are the positions of the letters of word. यहाँ positions क्या आ रही हैं? Now, if you look at the pattern here, I told you that in order to get the pattern, just look for the letter which is close to the first letter of the word. यहाँ पे फर्स्ट लेटर वर्ड का F है, तो F के आसपास का लेटर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है मुझे? G, जो एंड में है. तो एक बार देखने से लगता है दैट कोड माइट बी स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर्स, लेकिन जब आप R को ढूंढने जाएंगे तो R का कोड रिवर्स से नहीं चल रहा. ठीक है, F का कोड एंड में है G, बट R का कोड रिवर्स में नहीं चल रहा. R इज 18th, 19th लेटर इज S. So R का कोड S हो सकता है. A is 1, B is 2, G is 7, H is 8, R is 18th, S is 19th, A is 1, B is 2, N is 14, 15, C, D, E, F. So basically क्या हो रहा है, जो पहला लेटर है इसका कोड लास्ट में लिखा हुआ है, बाकी सबका कोड हमने सीधा स्टेट एक ऑर्डर में, मतलब डायरेक्ट ऑर्डर में लिख दिया. So this can also be done. इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था that if you know the positions of the letters, ठीक है, तो उस केस में it would be very easy to identify the pattern. तो अगर कुछ नहीं दिख रहा, पोजीशन लिख दो, उसके बाद चेक करो कि जो नंबर्स हैं, जो पोजीशंस आ रही हैं, उनका गिवन कोड की पोजीशन के साथ क्या रिलेशन बन रहा है. ठीक है, दैट वुड बी इजी टू आइडेंटिफाई. ऑन द सेम लाइंस, अगर मुझे अब इंपोजिंग का कोड निकालना है, तो आई का कोड क्या हो गया? J, वो लास्ट में जाएगा. बाकी सब डायरेक्ट ऑर्डर में आएंगे. M का N हो जाएगा. ठीक है, P का Q, नेक्स्ट लेटर O का नेक्स्ट लेटर P, S T I J N O. So it is NQP TJ NQP TJ लेटर मिस कर दिया शायद मैंने, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इसको. I का J हो गया. ठीक है, M का N, P Q O P S T I J एंड N का हो गया O. एंड G का H. यस, G का रह गया था H, सो GH. सो NQP TJ, ठीक है, OHJ. NQP TJ OHJ हमारे पास आ रहा है ऑप्शन 4 में. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस वन.
ठीक है. Now let's see the next one. So it says gamble is coded like this. So gamble का हमें कोड क्या दिया हुआ है, SZNYOV. अब G की पोजीशन है हमारे पास 7, 1, ये है 13th, 2, 12th एंड 5. और यहाँ पे देखें तो S की पोजीशन हमारे पास है 19th, this is 26, this is 14, this is 25, this is 15, this is 20. So basically it should be T here. It should be T. So if you look at the position of the letters here, 7 plus 20 becomes 27, right? 1 plus 26 becomes 27, 13 plus 14 becomes 27, and so on. 2 plus 25 is 27, 12 plus 15 is 27, E plus 20 is 20, E plus V, 5 plus 20, it is also, I think, this is 22, yes, sorry, this is 22, 5 plus 22 is 27. V is 22nd, so 5 plus 22 is again 27. Right, so again this is the same pattern which is of 27, जहां पे letters की जो positions हैं इनका total 27 बन रहा है. So on the same lines, the word floor, just write down the positions here. F is 6th, L is 12th, O is 15, this is 23, this is 5, this is 18. So अब 27 बनाना है तो 21st लेटर यहाँ होना चाहिए, इट शुड बी यू. यहाँ पे 15 लेटर होना चाहिए विच इज ओ. तो यहाँ पे 12th लेटर होना चाहिए विच इज एल. 23 plus 4 is 27, सो ये डी आ जाएगा. ई के लिए 22nd चाहिए विच इज वी, और आर के लिए आई चाहिए होगा विच इज 9th. सो कोड फॉर फ्लोर इज UOLDVI. इट शुड बी टी हियर. Let's see the next one now. Again, yearly is written like this. So word given is yearly. Its code is BVZIOB. Now this is 25. This is 5, 1, 18, 12, and 25. On this side, this is 2, 22, 26, 9, 15, and 2. Right. So position of B is 2, V is 22, Z is 26, and so on. Again, अगर आप ऐड करोगे पोजीशंस को, 5, 25 plus 2 is 27, 5 plus 22 is 27, 1 plus 6, 18 plus 9, 12 plus 15, 25 plus 2. So सबका जो टोटल बन रहा है 27 बन रहा है. So this is again the same pattern of 27. So based on that, annual will be, no, this is 1, so 26 would be Z. This is 14, this is 14, so इनका बनेगा 13th letter which is M. ठीक है. U is 21, इसके लिए 6 लेटर बनेगा, A का Z बन जाएगा. L is 12th, तो इसके लिए हमें 15th लेटर चाहिए होगा which is O. ठीक है. So answer would be ZMMFZO. So ZMMFZO is option number 3. Now here easy. Word easy is given to you. Numeric coding is there. Its code is 5117. Write down the positions. 5, 1. It is 19. It is 25. ठीक है. अब देखो आइडेंटिफाई करो क्या करा हुआ है. 5 का तो 5 आ गया, 1 का 1 आ गया. ये 19 को 1 क्यों लिखा हुआ है? If you write down 19 and if you find a digital root of 19, find the sum of digits. 1 plus 9 is 10. Again 10 plus 1 is 1 plus 0 is 1. So basically 19 का डिजिटल रूट बनेगा 1.
जो यहाँ पे दे रखा है, ऐसे 25 का बनेगा 2 + 5 विच इज 7, तो वही यहाँ बना हुआ है। सो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, जो पोजीशंस हैं इनके डिजिट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है, डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके हमने कोड बनाया है। सो द सेम लॉजिक, अब ये इजी है हमारे लिए। बी सेकंड है, ई 5 है, ए 1 है, एम की पोजीशन 13 होती है, सो 1 + 3 वुड बी 4, सो आंसर वुड बी 2514। Special here is coded as 65. So write down the positions here. S is 19, 16, 5, 3, 9, 1 and 12. Add up. First of all, सबको add कर दो. So 19 + 16, 35, 43, 52, 53 plus 12, 65. So basically, अगर सारी positions add कर देंगे, सारी positions को आप add करोगे, right? If you add up all the positions, the total would be 65. 19 + 16 + 5 + 3 + 9 + 1 + 12 is 65. So basically हमने सारी positions को यहाँ पे add करा हुआ है। Similarly, अगर हम connect की बात करें अब यहाँ पे, this is 3, 15, 14, 14, 5, 3 and 20. So just add the positions 18, 32, 46, 51, 54 plus 20, 74. Right? So अगर सारी positions add करेंगे, sum would be 74. So code for connect would be 74. So this is a little bit different here. Word issue is given to you, and the positions of the letters are 9, 19, 19. This is 21 and 5. और इसका कोड दे रखा है 341145. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आप देखोगे 5 का तो 5 दिख रहा है, बट बाकी किसी के लिए ये नहीं बन रहा। 2 + 1 करेंगे तो 3 आता है, वो यहाँ पे 4 है, ठीक है। 1 + 9 इसका डिजिटल रूट निकालेंगे 1 आएगा, इसका 1 आएगा, बट आई का फिर 3 नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द डिजिटल रूट, राइट। अगर आप डिजिट्स को ऐड भी करोगे तो ये सम नहीं बनेगा, डिजिट्स का स्क्वायर भी करोगे तब भी ये नहीं बनेगा। सो ना तो यहाँ पे सम चल रहा है, ना ही इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ना ही अगर आप सम करते हो तो कितना बनता है, 19 + 19 38, 38 और 47, 47 और 68, ये हो गया 68 + 5 73। सो सम बनेगा 73। अब 73 अगर नंबर ऑफ डिजिट से भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी नहीं बनेगा, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो सम भी नहीं चलेगा, डिजिटल रूट भी नहीं चल रहा, राइट। ना ही सम को नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं बनेगा, 5 डिजिट से यहाँ पे, तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन पोजीशन को मल्टीप्लाई करोगे ना, इफ यू मल्टीप्लाई 9 with 19 अगेन with 19 multiplied by 21 into 5, then you will find that the result would be 341145. तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था that when it comes to the numbers, it's a choice of the examiner, then he can do anything with the numbers. वो किसी तरह से नंबर के साथ खेल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करी है, the positions of the letters they are multiplied to get the code. 341145 is the product of 9, 19, 19, 21 and 5, ठीक है। तो इन द सेम केस, इन द सेम विद द सेम लॉजिक, अगर मुझे डेट्स के लिए करना है, सो द पोजीशंस आर 4, 1, 25 and 19. So it is 4 into 1 into 20 into 19 into 5. So it would be 19 into 4 is 76, 76 into 20 into 5 is 100. So answer would be 7600. So multiply the digits, you will get the answer as 7600. Next, we have the random coding, right? The coding which I told you would be of random type. This is the type which is the random coding.
अब रैंडम कोडिंग में क्या होता है, आपको एक तरफ इस तरह से कुछ भी सेंटेंस दे दिया, यहाँ तो खैर सेंटेंस इज मीनिंगलेस सेंटेंस बट इट कुड बी मीनिंगफुल आल्सो। ठीक है, जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल सेंटेंस हो, मीनिंगफुल मीनिंगलेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ हमें देखा जाए तो सिर्फ लेटर्स वर्ड्स के सॉरी कलर्स के नेम दे दिए यहाँ पे, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू एटसेट्रा, दे आर कोडेड एज दिस, ग्रे ग्रीन रेड पर्पल is coded as this and so on. Now this is the random coding. Why random? Because if you look at the first line, black orange yellow purple blue, that is, this is written as set jet let get bet. So it does not mean that now black is the first color or first word in the sentence. So it does not mean that the code for black would be set. No, it might be, it might not be. जरूरी नहीं कि होगा, हो भी सकता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि होगा। ऐसे ऑरेंज का कोड जेट हो ये जरूरी नहीं है, येलो का लेट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, पर्पल का गेट हो ये भी जरूरी नहीं है। ओके जी, सो हमें करना क्या है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें कोई 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस देख के उनमें कॉमन वर्ड ढूंढना है और कॉरस्पॉन्डिंगली कॉमन कोड ढूंढना है सेम सेंटेंसेस के बीच में। जैसे अगर मैं पहले 2 सेंटेंसेस की बात करूं, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू, यहाँ आ रहा है ग्रे ग्रीन रेड पर्पल। सो पर्पल इज द ओनली कॉमन वर्ड हेयर। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कोड में तो सेट जेट लेट गेट बेट, और यहाँ पे अगर देखोगे तो गेट इज द ओनली कॉमन वर्ड इन द कोड। सो मैं ये कह सकता हूँ दैट द कोड फॉर पर्पल वुड बी गेट। ठीक है, तो पर्पल का कोड हमारे पास गेट आ जाएगा। अब इनमें और कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप सेकंड और थर्ड सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता है कि पर्पल का जो कोड है दैट इज गेट, वो निकल गया। ठीक है, पर्पल का कोड गेट निकल गया। अब क्या बचा, ब्लू रेड सिल्वर, यहाँ पे आ रहा है ग्रे ग्रीन रेड, तो ब्लू रेड सिल्वर ग्रे ग्रीन रेड, ठीक है, पर्पल का गेट था, ब्लू रेड सिल्वर ग्रे ग्रीन रेड, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये रेड कॉमन आ रहा है। और इधर कॉमन क्या है, इधर कॉमन है वेट, तो दैट मीन्स रेड का जो कोड है दैट इज वेट। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर रेड, आंसर वुड बी वेट। Look for the second and the third and the first सेंटेंस, इन दोनों को चेक करो, फर्स्ट और थर्ड को, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू। सो पर्पल तो कट गया, ठीक है, और क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है। सो ब्लू कॉमन है, इधर क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचा सेट और टेट, तो सेट कॉमन आ रहा है, इधर ब्लू कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ब्लू का कोड हो गया सेट, ब्लू का सेट है। तो यहां से क्या बचा, सिल्वर बचा, और यहाँ पे कोड पे क्या बचा, टीएटी टेट, तो सिल्वर का कोड हो गया टेट। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेकंड को और इसको चेक करूं, सो ग्रे ग्रीन ग्रे ऑरेंज पिंक, ठीक है, सो ओनली कॉमन इज ग्रे। सो ग्रे का इधर कॉमन है, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, पेट, सो दैट मींस ग्रे का जो कोड है दैट वुड बी पेट। अब सेकंड सेंटेंस में बचा सिर्फ ग्रीन, सो यहां से मैं कह सकता हूं ग्रीन का कोड क्या होगा, इफ इट इज रिक्वायर्ड, ग्रीन का कोड होगा वेट। हमें चाहिए नहीं चाहिए वो बात की बात है। ठीक है, तो अब अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट और इस वाले को देखते हैं अगर हम, तो ऑरेंज पिंक और यहाँ से ऑरेंज ही बचा हमारे पास। सो कॉमन क्या आ रहा है, ऑरेंज और ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, बेट, सो बेट चला गया ऑरेंज के लिए, ठीक है, ऑरेंज का हो गया बेट, और यहां से मेरे पास बचा सिर्फ पिंक, सो पिंक का कोड क्या आ जाएगा, रेड। ठीक है, यहाँ पे पिंक से हमारे पास सिर्फ रेड बचा, सो ग्रीन का भी हो गया। सो अगर आप अब देखते हो तो सबका हमने कोड यहाँ पे निकाल लिया, बचा क्या, ब्लैक एंड येलो। ब्लैक एंड येलो कहीं पे भी और नहीं आ रहा, और यहाँ बचा हमारे पास जेट और लेट। तो मैं कह सकता हूं अगर ब्लैक की बात आएगी तो ब्लैक का कोड हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इट कुड बी जेट, इट कुड बी लेट, राइट। सो सेम गोज विद येलो आल्सो, येलो का कोड भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इट कुड बी लेट और जेट। No, let's see the question. So first one, its answer is wet. Code for red is wet.
What is the code for orange, pink, red? Now orange is wet, so it should have all these three words. Pink is red and red is wet. अब मैं ये बोलूंगा that it is not necessary that they should be in the same order. कि orange का कोड पहला होगा, पिंक का कोड सेकंड होगा, रेड का थर्ड होगा. ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता. ठीक है, मतलब ऑप्शंस के अंदर अगर ऑप्शन यहाँ देखें तो यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, बेट ऑरेंज का कोड बेट है, पिंक का रेड है, रेड का वेट है, वो बन रहा है. बट अगर ये मान लो ऑप्शन आपको रेड, बेट और वेट दे रखी होती, ये तब भी हमारा आंसर यही बनता. ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं रैंडम कोडिंग. तो रैंडम कोडिंग में जरूरी नहीं कि पहले वर्ड का कोड पहले नंबर पे आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. वो बाई चांस यहाँ पे है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बट जरूरी भी नहीं है कि ऐसा होगा. हो सकता है कि पहले रेट होता फिर बैट होता. हमें सिर्फ ये देखना है कि ये तीनों वर्ड्स ऑप्शन में होने चाहिए. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो फर्क नहीं पड़ता उससे. लास्ट क्या है? सेट. सेट किसका कलर है? सेट इज अ कलर ऑफ ब्लू. And that is not given the options, sorry. So it is of the blue. Set is for blue. Options are wrong here. So set is for blue. Right ji? Let's see the next now. I hope this is clear. Let us do one more set of this type. So sky, planets, satellite, stars. Its code is this one: soon, months, moon, sun, moon, space and planets. Sun, moon, space and planets का कोड ये रखा है. रॉकेट, स्टार, सन, एयरप्लेन का ये रखा है, एंड सो ऑन. सो पहले इन्हीं दो सेंटेंसेस को चेक करते हैं. स्काई, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, सन, मून, स्पेस, प्लैनेट्स. तो क्या कॉमन आ रहा है? प्लैनेट्स कॉमन आ रहा है. सो प्लैनेट्स कॉमन आ रहा है, इसका मतलब प्लैनेट्स का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोड क्या कॉमन आ रहा है? जेके. ठीक है, यहाँ पे जेके आ रहा है. अब इनमें और कुछ भी कॉमन नहीं है. स्काई, सैटेलाइट, स्टार, कुछ नहीं बचा. अब अगर फर्स्ट और फोर्थ को देखेंगे, स्काई, सैटेलाइट, स्टार्स, स्पेस, अर्थ, स्काई, रॉकेट, तो स्काई ही कॉमन आ रहा है. ठीक है, और अगर कोड में देखेंगे तो एसके कॉमन आ रहा है. इसका मतलब स्काई का कोड क्या हो गया? एसके. सैटेलाइट एंड स्टार्स. सो सैटेलाइट, स्टार्स यहां बचा. स्काई, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार्स, रॉकेट, स्टार, सन, एयरप्लेन. सो स्टार्स ही कॉमन आ रहा है सिर्फ. सो स्टार्स कॉमन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? एलके. ठीक है, तो स्टार्स का कोड हो गया एलके. स्टार्स का कोड हो गया एलके. अब पहले सेंटेंस में सिर्फ सैटेलाइट्स बचा, तो सैटेलाइट्स का कोड मेरे पास हो जाएगा, यहाँ क्या बचा? ओडी. सैटेलाइट्स का कोड हो जाएगा ओडी. और पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज अ सैटेलाइट कोडेड एज? आंसर वुड बी ओडी. अब बाकी चेक करते हैं. सन, मून, स्पेस, प्लैनेट. सेकंड और थर्ड चेक करो. सन, मून, स्पेस एंड प्लैनेट्स. तो यहाँ पे सिर्फ सन ही कॉमन आ रहा है. सन कॉमन आ रहा है, इधर से एमजे कॉमन आ रहा है. सो दैट मींस सन का कोड हो जाएगा एमजे. ठीक है, अगर इनको चेक करेंगे, रॉकेट एंड एयरप्लेन, और सिर्फ रॉकेट ही कॉमन है. इधर कोड में कॉमन मेरे पास आ रहा है जीटी. सो रॉकेट का कोड हो गया जीटी. ठीक है, और यहां बचा एयरप्लेन. एयरप्लेन का कोड हो जाएगा, जो कोड में बाकी बचा, एयरप्लेन का कोड हो गया एफ ए. यहाँ स्पेस कॉमन है सिर्फ, तो स्पेस का कोड हो गया, यहाँ पे कोड में क्या कॉमन आ रहा है? एचओ. ठीक है, तो स्पेस का कोड हो गया एचओ. और यहां से बचा मून. मून इज डीएन. और यहां से बचा अर्थ. अर्थ इज एमएन. ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबके कोड निकाल दिए. यहाँ पे सबके कोड निकल सकते हैं. Now it says what is the code for rocket airplane? So rocket airplane is GT and FA. It would be GT and FA in any order.
It could be GTFA, it could be FAGT also. So it is given in the first option, FAGT. Next is, which word is coded as JK? So JK is planets, right? So option 4 will be the right answer. So I hope this topic, this concept is clear to you now. You people can do the questions from this topic now. Thank you.